Namaskar. Once again, you are welcome to your favorite platform. And in the series of literary criticism, today you are going to have your fourth lecture. And fourth lecture is on Dante as a critic. Dante is well-known, world-famous poet, and only a few people know, and not people, you say, only a few scholars know that Dante was a critic as well. और दांते की पोएट्री पर तो बड़े बड़े कमेंट्स हैं, यहाँ तक कि टी.एस. एलियट once said that you could divide the world into two parts. पूरी दुनिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. अगर आप दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करोगे ना, तो इतनी बड़ी दुनिया है ये, और एक पार्ट जो होगा, एक हेमिस्फेयर, उधर दांते को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ शेक्सपियर को खड़ा कर दीजिए, और दुनिया में कोई तीसरा है ही नहीं. दांते एंड शेक्सपियर. हु सेड? इट वाज थॉमस स्टैंस एलियट हु डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. फर्स्ट हाफ दांते का है और दूसरा हाफ जो है वो शेक्सपियर का है. तो दांते एज अ पोएट इज वेल नोन. और कौन से पोएम के लिए जाने जाते हैं? फॉर हिज ड्रीम विजन. That dream vision was called initially Commedia, but later his friend gave the epithet Divina, so it became Divina Commedia, and in contemporary world it is known as Divine Comedy. But in today's class I am going to focus on Dante as a critic. Right? What was his opinion about poetry? Basically, he talked about poetic language. He talked about vernacular language, the vernacular in which he himself has written his magnum opus Divine Commedia. What should be the parameter for a vernacular poem? Vernacular means dialect that we people speak, right? Generally जो हम बोलते हैं. And he differentiates between two kinds of languages. One language is spoken by common men, masses, and the other one is spoken by elite class people, sophisticated people, learned people. And in which language literature, in which language poetry should be written? Then Dante is of the opinion that literature should be written in vernacular, in the dialect, so that it could reach to maximum number of people. If you are living in Italy and writing in Latin, then only very few people could understand your literature, could understand your theme, could understand your intention. But if you are writing in the same language जिसमें वो रोज बात करते हैं, जिसमें they are comfortable, तो it will be more appropriate, more beneficial to the public. इस पर पूरा फोकस है. और it was Dante first who started writing in vernacular. Earlier जो language हुआ करती थी, it was totally Latin. And the essay that I am going to discuss today itself was written in Latin. वो खुद ही Latin में लिखा गया था. जो criticism है, जो critical work है दांते का. Dante was living in 13th century, born in 1265 and died in the 14th century in 1321. And during his academic career, he wrote the essay De Vulgari Eloquentia. Right? थोड़ा सा color dim है, so I write it in a different color. D V U L Z A R I E L O Q U E N T I A. This was the essay. The title itself is in Latin and the entire book was written in English. Earlier it was planned that this will be a book into 4 books, but he could complete only 2. या आप ये कह लीजिए we have only 2 books. 2 books were lost या 2 books were not written. इस पर यूनानिमस नहीं है critics. Latin title है, and in English this Latin title means on eloquence in vernacular.
on eloquence in vernacular. Eloquence means, you know better. Vernacular means the dialect, the language, local language that is spoken in particular locality, उसको vernacular कहते हैं. खासकर आप बात करें इंडिया में तो you are aware of the name तुलसीदास. तुलसीदास wrote रामचरितमानस in his vernacular अवधि, राइट. तमिल के लोगों ने अपनी भाषा में लिखा है तो इट वॉज अ वर्नाकुलर, राइट. तो वर्नाकुलर में क्यों लिखा? सो दैट इट कुड रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. दिस वॉज द अप्रोच ऑफ दांते, राइट. इन ऑन द इलोक्वेंस इन द वर्नाकुलर, it consisted of, it was supposed to be in 4 books, but it abruptly terminates in the middle of the 2nd book, right. He could complete only 2, right. It automatically all of a sudden comes to an end in the 2nd book itself. And though it was written in between 1302 and 1305, but it was found out in 1529, right. They remained unknown by 1529 when they were published in an Italian translation. What does it mean? They means the 2 books, जो 2 books available हैं, they were brought out in 1529, right, published in Italian translations and attributed to the poet Trissino. And then in 1577 ओरिजिनल लैटिन में इसको पाया गया था. द बुक अपीयर्ड इन द ओरिजिनल लैटिन वेयर इन पेरिस, राइट. इन पेरिस इट वाज फाउंड आउट इन 1577. देन पीपल saw that originally it was written in vernacular, originally it was written in Latin, right. तो सजेशन एडवाइस देते हैं इन लैटिन लैंग्वेज और किसकी सलाह देते हैं कि पोएट्री शुड बी रिटन इन वर्नाकुलर, राइट. वर्नाकुलर में लिखा जाना चाहिए. और वर्नाकुलर दांते का क्या है ये कमेंट बॉक्स में जाकर के डालिएगा कि इन विच लैंग्वेज डिड दांते राइट हिज डिवाइन कॉमेडी. डिवाइन कॉमेडी किस लैंग्वेज में लिखी है ये क्वेश्चन है. ये ऐसे जो है द 2 बुक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, दी वेल्गरी एलोक्वेंस, राइट, इट वाज रिटन इन लैटिन, राइट. सपोजली 4 बुक्स होना था बट only we have 2 books, or 2 books we first it was found out in 1529 in Italian translation attributed to the poet Trissino, and in 1577 the original manuscript was found in a library of Paris. All right, we have only 2 books available and the 2 books are on 2 different topics. The first book जो है दांते की, it discusses the relationship between Latin and vernacular languages. What was the importance of Latin for Virgil, importance of Latin for Ovid, for Lacan, different writers की बात करता है, right. And in search of illustrious vernacular. What is illustrious vernacular? Keep on watching, you will know in the mid of the video what is illustrious vernacular that was being advocated by Dante. And the second one जो है, the second book जो है, it is focused on the analysis and structure of the canto or song, जिसको इटालियन में क्या कहा जाता है? इटालियन में कैंजनी कहा जाता है, सॉरी इटालियन में सिसिलियन में कैंजनी कहा जाता है, इटालियन में उसको कैंटो कहा जाता है, सॉन्ग कहा जाता है. तो देयर आर 2 बुक्स ऑफ द बुक. And the first book में जो है Dante deals with vernacular language, the relationship between vernacular and Latin, and finally he talks about illustrious vernacular, and in the second book he talks about a song form, and that song form is known as canto or canzoni in Sicilian. All right, कोई confusion तो नहीं है ना? कोई confusion हो तो I'll be waiting for your messages, your likes, your responses. And then he talks about 2 kinds of languages. There are 2 kinds of languages. कौन सी हैं 2 kinds of languages? एक vernacular language that is primary, that is innate, that comes to us by birth.
जो हमारे पास ऑटोमेटिक आती है, वी डू नॉट हैव टू acquire. This is not acquired language, but this is the language, inherent language जिसे आप कहते हो, वो vernacular है. And the second language that is generally used by writer, that is a systematic language होती है वो, और ऐसे systematic language होती है कि it is written with a specific purpose, it has certain rules, it has certain formulas, and it is structured, and that structured language is called grammatica. राइट, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज जो है उसको ग्रामेटिका कहते हैं. ग्रामेटिका मींस ग्रामर, एंड इट इज सेकेंडरी लैंग्वेज, एंड नॉट ओनली सेकेंडरी बट इट इज आल्सो द सेकेंड लैंग्वेज दैट वी अक्वायर, जिसको हम अक्वायर करते हैं थ्रू आवर एफर्ट्स. और वर्नाकुलर क्या है? वर्नाकुलर कम्स टू अस ऑटोमेटिकली, इनेट होती है वो, इनहेरेंट होती है. और ग्रामेटिका जो है, ग्रामर जो है, इट इज नॉट इनहेरेंट बट यू हैव टू एक्वायर इट. आपको बहुत हार्डवर्क करना होता है उसको सीखने के लिए. जैसे आप ग्रामर सीखते हो, आप अंग्रेजी सीखते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है. बट जिस घर में आप पैदा होते हो वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, है ना, तमिल, तेलुगु, you don't have to learn it. It automatically comes to you. But the grammatica, the structured, the preferred language, the language of the writing, you have to master it, you have to learn it. And according to Dante, there are two kinds of languages, and that one is vernacular and grammatica. All right, कोई confusion हो तो शेयर करिए, कोई confusion हो तो बताइएगा. two types of languages में. एंड इजाजत हो तो प्रोसीड करें, कोई क्वेश्चन हो तो शेयर जरूर करिए. ऑब्वियसली जैसे बता रहा था, वर्नाकुलर इज नेचुरल, इट इज नॉट फोर्स्ड, इट इज ऑटोमेटिक, और इट इज द लैंग्वेज ऑफ मास, लैंग्वेज ऑफ द पुअर, लैंग्वेज ऑफ एवरीवन. और उस एवरीवन से जो है ये कहां पर पहुंचती है? जब ग्रामेटिका बनती है तो इट इज ग्रामेटिका बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास. ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस द मोर नोबल इज वर्नाकुलर, द मोर नोबल इज वर्नाकुलर. एंड हाउ वर्नाकुलर इज द मोर नोबल? बिकॉज इट वॉज द लैंग्वेज ओरिजिनली यूज्ड बाय the human race, originally used by the human race. And do you know who was the first in the world who spoke first? दुनिया में कौन था पहला, सबसे पहला व्यक्ति, पहला इंसान, पहला गॉड, पहला डेविल, पहला साटन, जिसने सबसे पहले बोला था? ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है, and you have to search the answer and then you have to mention in the comment box. और तभी मुझे पूरा भरोसा होगा कि you have watched the video properly. And if you couldn't find the answer, then ask me in the next video, right? So next video में I'll come to you with your answer, right? The human race first used vernacular, right? The first grammatical structure नहीं यूज किया था, vernacular यूज किया था. Second, the whole world employs it. First, it is first used by the human race, and second, the whole world, पूरी दुनिया जो है इसको यूज करती है, इसलिए वर्नाकुलर इज नेचुरल, दो with different pronunciations and using different words. Suppose that you are in India, your vernacular will be different. Alright, one who is living in Italy, his vernacular will be different. One who is living in Africa, his vernacular will be different, but there will be vernacular. ये एक बात तो तय है कि vernacular वहां पर होगी ही होगी. That's why it is natural and it is first spoken. It is the first language of the human race. Third, because it is natural to us, while the other is in contrast artificial. The English that we speak is artificial, but the language जो हमने बचपन से सीखी है, that is natural. So there are three differences. Vernacular is natural. How? Because it was the language first spoken by the human race.
Second, it is spoken across the world. Third, it is natural. It comes to us naturally, right? पूरी दुनिया में बोली जाती है. And grammatica जो second है, that is artificial, that is fake, that is unnatural, right? Unnatural और natural का difference होता है. इसलिए Dante is of the view that vernacular should be used, must be used for writing, right? Writing में उसका यूज करना चाहिए. एंड जिस वर्नाकुलर की वो बात करते हैं वो सिंपल वर्नाकुलर नहीं है, वो इलस्ट्रियस वर्नाकुलर की बात करते हैं. इलस्ट्रियस वर्नाकुलर क्या होता है? व्हाट इज इलस्ट्रियस? Italian should be the language of poetry. This is the precept. This is the suggestion कि language of the poetry क्या होनी चाहिए? Language of the poetry should be Italian. And contrast किससे करना है? एक तरफ you have grand style of Homer, you have grand style of Virgil, you have grand style of Lacan, you have grand style of Ovid, और आप बात कर रहे हो वर्नाकुलर की. कंपीट कैसे करोगे? तो you are not supposed to use general vernacular, but you have to use illustrious vernacular. और वो illustrious vernacular बनेगा कैसे? For this Dante suggests vocabulary and structure, right? vocabulary और structure पर भी दांते आते हैं, मैं भी आता हूं अभी. Dante thought to make one out of various vernaculars, choosing the best in each and avoiding all that is purely provincial or local. एक बात और जानिए कि एक हिंदी में कहावत है क्या? जगह जगह पर बदले बानी, चार कोस पर पानी. सुना है कि नहीं? तो वाणी जो है ना, डायलेक्ट जो है ना, वर्नाकुलर जो है ना, ये जगह जगह पर बदलती रहती है. इन अ सिंगल कंट्री देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्नाकुलर्स. बहुत सारी बोलियां हैं हमारे यहाँ, तो भाषाएं ही बहुत सारी हैं. और जो बहुत सारी जो है वर्नाकुलर्स हैं, तो किस में लिखा जाए? विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट? एंड फॉर दिस दांते का ओपिनियन ये है कि वी शुड कलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड देन वी शुड फिल्टर आउट. फिल्टर करना चाहिए और जो बेस्ट हो उसको इनकॉर्पोरेट करके एक डिफरेंट लैंग्वेज बनानी चाहिए. जो टोटल प्रोविंशियल हो, जो टोटल लोकल हो, उसको लीव आउट कर दीजिए, राइट? उसको छोड़ दीजिए. शामिल किसको करिए? जो बेस्ट हो और एवरीवेयर हो, जो यूबिक्यूटस हो, ओमनी प्रेजेंट हो और बेस्ट भी हो, उसको शामिल करिए. बाकियों को छोड़िए, तब वो इलस्ट्रियस वर्नाकुलर बनेगी. अवॉइडिंग दैट इज प्योरली प्रोविंशियल और लोकल. जो पूरी तरीके से प्रोविंशियल हो, जो लोकल हो, you have to cut it, you have to avoid it, और then you will be making a new language and that will be illustrious. Requirements क्या हैं illustrious vernacular की? Then there are two requirements: vocabulary and sentence structure. vocabulary तो इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. और देखिए कैसे कैसे वर्ड्स की बात करते हैं. पहले तो कहते हैं कि दो टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक रूरल होते हैं और एक अर्बन होता है. क्लासिफिकेशन में एक रस्टिक होता है और एक अर्बन होता है. फिर कहता है रस्टिक इज इग्नोबल, देयरफॉर इट कैन नॉट फिट इन द पैरामीटर ऑफ इलस्ट्रियस वर्नाकुलर. इसको हटाओ, अर्बन बचा. अर्बन को कहता है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अर्बन. एक तो चाइल्डिश है, एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनिन है, राइट? चाइल्डिश, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, अर्बन के तीन पार्ट. अब चाइल्डिश एंड फेमिनिन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग, सो यू हैव टू यूज मैस्कुलिन ओनली. और फिर मैस्कुलिन के पार्ट बताता है कि मैस्कुलिन कंसिस्ट्स ऑफ टू सेट्स ऑफ वर्ड्स, शैगी एंड रम्पल्ड. शैगी एंड रम्पल्ड. एंड दूसरा जो है वो है कूम्ड एंड ग्लासी. तो शैगी एंड रम्पल्ड जो है ये भी जो है इग्नोबल है. इट कैन ऑल्सो नॉट बी यूज्ड इन पोएट्री. देन व्हाट शुड बी यूज्ड? देन combed and glossy language should be used. A combed and glossy words should be used for proper writing. ये है classification of words. Rustic, urban. Rustic is ignoble. Urban has three types: childish,
feminine, masculine. Masculine is the language of poetry. Once again, masculine has two types: shaggy and shaggy and rumpled, and both are ignoble. And then glassy and combed. ये लैंग्वेज होनी चाहिए, ये वर्ड होना चाहिए पोएट्री राइटिंग के लिए. अब व्हाट इज कोम्ड एंड ग्लासी? कोम्ड एंड ग्लासी वर्ड्स क्या होते हैं? कोम्ड एंड ग्लासी वर्ड्स, द कोम्ड आर वर्ड्स लाइक अमोर, डोना एंड सैल्यूट, which leave the speaker's lips as it were with certain sweetness. words ऐसे जहां से स्वीटनेस आती है, जहां से मेलोडी आती है, जहां से संगीत निकलता है, वो कूम्ड वर्ड्स हैं. ग्लासी वर्ड्स कौन से हैं? ग्लासी वो वर्ड्स हैं जो ऑर्नामेंटल होते हैं, ग्लास की तरह, राइट, ऑर्नामेंटल होते हैं, which when mixed with combed words make a beautifully harmonious conjunction. और जब वो कोम्ड वर्ड्स के साथ मिलते हैं तो हार्मनी एक क्रिएट करते हैं, और वो हार्मनी पोएट्री की है. दीज आर द लाइन्स गिवन बाय दांते हिमसेल्फ. And I define as combed those words that having 3 syllables. combed words क्या है? combed words वो हैं जिनके 3 syllables होते हैं, और वेरी क्लोज टू दैट नंबर. 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो डायसिलेबिक भी हो सकता है, और वो क्वाड्रासिलेबिक भी हो सकता है. एंड नीदर ऑस्पिरेशन नॉर एक्यूट और सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट नॉर डबल्ड जे और एक्स. डबल जेड भी नहीं होगा, डबल एक्स भी नहीं होगा. नॉट टोइंड लिक्विड कॉन्सोनेंट्स नॉर सच कॉन्सोनेंट्स placed immediately after a mute, instead seem as it were polished and leave certain sweetness in the mouths of those who utter them. जैसे अमोर, डोना, डोना माने लेडी, डिजियो, डिजायर, वर्चू, डोनेर, डोनेर माने गिव, डोनेट उसी से बनाए, और लेट इट means joy, salute means health, right? फिर secretariat means safety and defensa means defense. ये कैसे वर्ड्स हैं? ट्राइसिलेबिक वर्ड्स हैं, 3 syllabic वर्ड्स हैं, और according to Dante, when the speaker speaks these words, sweetness comes through the mouth of the speaker, and that's why these words are suitable for vernacular, for illustrious vernacular. All right, clear? फिर से एक बार इसको समझिएगा. combed कौन से वर्ड्स होते हैं? Number 1, having 3 syllables. Number 2, such words do not have any aspirations nor acute or circumflex accent. बहुत acute नहीं होते, sharp tongued नहीं होते, उसकी जरूरत नहीं होती, और ना तो उसमें जैसे कि बज, क्विज, ऐसी आवाज भी नहीं आती, राइट. वो कैसे वर्ड्स होते हैं? राइट, ना तो उनमें लिक्विड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और ना तो ऐसे कॉन्सोनेंट्स इमीडिएटली आफ्टर द म्यूट पुट किए जाते हैं. इंस्टेड सीम एज इट वर पॉलिश्ड, लीव अ सर्टेन स्वीटनेस इन द माउथ्स ऑफ दोज हु अटर देम, हु स्पीक देम. एंड एग्जांपल देता है अमोर. अमोर विंसेंट अमोनिया, जेफरी चॉसर को पढ़ा होगा. लव कंकर्स ऑल. AMM का मतलब ही होता है लव. AMM का मतलब ही होता है लव, और इससे बनने वाले जितने वर्ड्स होते हैं, एमिटी, एमिएबल, एमोरस, राइट, ये सब कहीं ना कहीं लव से ही रिलेटेड होते हैं. तो जोना, जोना को बोलता है लेडी, राइट. आदिजियो, डिजायर, वर्चू, डोनियर, राइट, सैल्यूट, सिक्योरिट एंड डिफेसा. दीज आर द वर्ड्स जिनको कूम्ड वर्ड्स कहा जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दांते दे आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ लिटरेचर. ऑल राइट.
चलिए, ऑलराइट देन यू कैन प्रोसीड। फिर वो बात करता है कि सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए वर्नाकुलर के लिए। जैसे कि जब आप एपिक लिखते हो, ग्रैंड सब्जेक्ट मैटर चाहिए। इन द सेम वे Dante talks about illustrious vernacular should be used for serious topics. For illustrated subject matter, वो common subject matter के लिए illustrative vernacular is not appropriate. It has not only to be grammatically correct, but also the most urbane. ग्रामर तो ठीक ही है, मोस्ट अर्बेन इसको होना है, इन कीपिंग विद इट्स अर्बेन वोकैबुलरी। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, सेकेंड बुक, ही टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड करना है। और स्ट्रक्चर्ड को बोलता है डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउ द सेंटेंसेस आर created according to Dante for the writings। पहला बताता है एक करेक्टर ऐसा होता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको अनकूथ कहा जाता है। अनकूथ सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है। और हु यूज अनकूथ, तो बोलता है बाय दोज विदाउट लर्निंग, दोज हु आर इलिटरेट, वो अनकूथ सेंटेंसेस बनाते हैं। एंड those who are purely learned, that is employed by strict scholars and school masters। एक ये हो गया सेंटेंस का टाइप, दूसरा प्योरली लर्नेड। थर्ड स्टाइल जो है वो लर्नेड एंड एलिगेंट स्टाइल है, एंड इट इज यूज्ड बाय दोज हु ड्रॉ सुपरफिशियली ऑन रेटोरिक। लर्नेड एंड एलिगेंट स्टाइल। फोर्थ जो है, इट इज there is also a style that is learned and elegant and at the same time lofty। मतलब sublimity भी है, learned भी, lofty भी और elegancy भी, सारी चीजें जहां पर होती हैं। This degree of construction is the one we call the most excellent। most excellent क्या है? जहां पर learned भी हो, elegancy भी हो और उसके साथ साथ loftiness भी हो। And one seek when we deal with the highest things by reading Virgil, Lucan, Ovid, Statius, Livy, Pliny, Frontinus, Plautus, Orosius। ये वर्जिल, लाका और ओविड ये पोएट्स हैं, और लिवी, प्लिनी, फ्रंटिनस, पैलेस, ये सब जो है प्रोज राइटर्स हैं। राइट, सच कंस्ट्रक्शन कैन बी मास्टर्ड। तो ये वो डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बोलता है। अनकूथ, दैट इज स्पोकन बाय अनलर्नेड पीपल, इलिटरेट पीपल। सेकंड पे बात करता है लर्नेड एंड एलिगेंट स्टाइल की। थर्ड पर बात करता है लर्नेड, एलिगेंट एंड लॉफ्टी की। एंड दैट थर्ड वन जो है, इट इज मोर अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग। एंड इफ यू वांट टू लर्न दीज थिंग्स, इफ यू वांट टू लर्न the third writing style, then suggestion में देता है you have to study these writers, these poets to master it। अगर आपको मास्टरी करना है तो आपको इस सबको पढ़ना है, आप वहां से सीख जाओगे। ऑलराइट, अब कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल प्यार से शेयर करिएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड लास्ट में बात करता है कि व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट, राइट, फॉर इलस्ट्रियस वर्नाकुलर। देन एज आई टोल्ड यू, कि सब्जेक्ट पे बात करता है कि ग्रैंड स्टाइल सूट्स टू ग्रैंड पर्पस ओनली, ग्रैंड सब्जेक्ट ओनली, राइट, सबलाइन सब्जेक्ट ओनली। तो इलस्ट्रियस वर्नाकुलर शुड आल्सो बी यूज्ड फॉर lofty subject matter, for lofty content, right? It is no use asking for a grand style until you have recognized that it can only be employed in the service of grand theme as conceived by a man of great intellectual stature। यही बात कौन कह रहा था? होरेस भी यही बात कह रहा था कि जब आप सबलाइन की बात करते हो तो ग्रेट थॉट्स कम इन द माइंड ऑफ
ग्रैंड पीपल। ग्रैंड पीपल के दिमाग में ही ग्रैंड आइडिया आता है, नॉर्मल मैन जो है वो कुछ सोच नहीं सकते, राइट, उनके अंदर वो इमोशंस जनरेट नहीं हो सकते। वही यहां पे कह रहा है द बेस्ट सब्जेक्ट इज ऑफ 3 शॉर्ट्स। 3 टाइप का बेस्ट सब्जेक्ट्स भी होता है, किस पर लिखा जाना चाहिए। तो पहला जो बताता है दैट इज सेलेस, दूसरा बताता है कि दैट इज अमोर, दैट इज वीनस, एंड थर्ड इज वर्चूज। दीज आर द 3 एरियाज जहां से वो टॉपिक ले सकता है। सेलेस मीन्स सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसकी, कंट्री की, नेशनल, नेशन की। लव फॉर कंट्री, लव ऑफ वुमेन and love of God. These are the 3 areas, these are the 3 subjects that are to be chosen by a poet, by a writer as Dante thinks. Alright, तो ये कंटेंट सबलाइन सब्जेक्ट होना चाहिए, हाई प्रोफाइल सब्जेक्ट होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दांते जो हाई प्रोफाइल सबलाइन सब्जेक्ट्स वो 3 हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? लव फॉर द कंट्री नंबर 1, लव फॉर सेकंड पर बात करता है लव ऑफ अ वुमेन, और थर्ड पर बात करता है लव ऑफ गॉड, राइट। ये 3 टॉपिक की बात करता है, 3 सब्जेक्ट्स की बात करता है। ऑलराइट, कुछ ना समझ में आया हो तो जरूर शेयर करिएगा। ये दांते का क्रिटिसिज्म, हाँ, ये दांते की एडवाइस है वर्नाकुलर की, और दांते वो पहले व्यक्ति हैं जो वर्नाकुलर की बात करते हैं। और यही अभी जब आप हम एलिजाबेथन पीरियड से पहले आएंगे रेनेसांस क्रिटिसिज्म पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने जा रहा है, तो वहां पर 2 चीजें आएंगी। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क्लासिकल राइटिंग के सपोर्ट में होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश राइटिंग के सपोर्ट में होंगे। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी जिसको इंकहॉर्न कंट्रोवर्सी कहा जाता है। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इंकहॉर्न कंट्रोवर्सी क्या है, कैम्ब्रिज स्कूल कौन सा है, और एरोपैगस कौन कौन से लोग उस ग्रुप में शामिल थे, और उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। और फिर वहां पर हम जो पिछले जितने भी लेक्चर्स, जो वीडियोस आप देख चुके हैं या जो देख रहे हैं, इन सब का फिर से जिक्र होगा कि हाउ रेनेसांस क्रिटिक्स डिफर फ्रॉम देयर प्रीडिसेसर्स, उनसे अलग कैसे करते हैं। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। छोटी सी वीडियो है, 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है। थैंक यू सो मच आप सभी को, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर प्रिपरेशन, उसको जारी रखिए। हम आपको मिलते रहेंगे, किस लिए? कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ पूछने के लिए। और हाँ, जल्दी ही लाइव क्लासेस होना भी शुरू हो जाएंगी। बस आप खूब सारे संख्या में जुड़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।